So today we will be doing this problem. This is, I think, illustration 32 from your textbook. 32 check करो. मिला illustration 32? Yes. Okay, page number बोलो ना मुझे. 120. 120. Yes. Page number 120, illustration 32. So this is the sum that we are going to do. Chalo, let me read the problem for you. So what is the question being given? From the following information of Messrs. Deepak Company Limited, prepare balance sheet with as many details as possible. So you have to prepare balance sheet for Deepak Company Limited. Current ratio is given to you as 2.5:1, liquid ratio 1.5:1, working capital rupees 1,20,000, bank order of rupees 20,000, reserves and surplus 80,000, fixed assets to proprietor fund 0.75:1, and there is no long-term loan and investment and fixed assets. Current assets include only stock, debtors, cash balance in the ratio of 11:5:4 respectively. Now this is the question being given to us. Now there is no balance sheet given for this sum. So only with the help of the question we have to frame balance sheet. Is that clear? Okay. Chalo, the balance sheet frame करते हैं without any balance sheet they have not given us any balance sheet. Question mark के साथ कोई भी balance sheet दिया नहीं है. We will be preparing the balance sheet with the help of the items we can see from the ratios. ठीक है. तो चलो कौन से items दिख रहे हैं liability side में बोलो क्या क्या लिखूं. Liability side में सबसे पहला तो share capital आएगा ही. Okay. So liability side में सबसे पहले आएगा share capital. So I am writing share capital first. So this is the balance sheet which I am framing. Share capital तो रहेगा ही. So I am writing share capital. ठीक है. Share capital का कोई value नहीं है. Share capital के बाद reserves and surplus. Now dear sir, you can check it out. Reserves and surplus is been given in the question. कितना दिया है reserves and surplus question में? 80,000. तो reserves and surplus question में दिया है. It is 80,000. So I am writing reserves and surplus in my balance sheet. I hope all of you are framing the balance sheet with me. Yes. Reserves and surplus 80,000. ठीक है. Then we get own fund. तो share capital रहेगा that we don't know the value. Reserves and surplus दिया हुआ है 80,000. Then we will be getting own funds. लेकिन own funds का total के लिए पहले share capital चाहिए. Then only we will be getting own funds. तो वो बाद में मिलेगा. Then 10 मैंने ये debentures तो ऊपर से copy down किया है. मैंने कॉपी किया है तो ऊपर से डिबेंचर आया है. बट एज फार एज दिस इज कंसर्न मेरे को यहाँ पे देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन. देखो क्लियरली बोला है. बराबर है. देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन एंड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट. तो डियर इन दिस सम देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन. सो कोई डिबेंचर भी नहीं रहेगा. कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है. सो दिस सम डज नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म लोन. सो आई एम डिलीटिंग दैट लॉन्ग टर्म लोन जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. So share capital है, reserves is given to us 80,000, own fund पता नहीं है, no long term loan clearly बोला है question में. Okay, there is no long term loan, no long term loan नहीं है तो borrowed fund कुछ भी नहीं है, ना डिबेंचर है ना कोई लोन है. So I am striking it off. ठीक है. उसके बाद करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज तो रहेगा क्योंकि करंट रेशियो है, लेकिन करंट लायबिलिटीज का कोई स्प्लिटअप नहीं है. तो स्प्लिटअप नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे देखा तो वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट. Yes, sir. Bank overdraft is the item of current liability. So current Yes, liability में एक item पता है बैंक overdraft है. So if we know bank overdraft का value भी दिया उन्होंने. Bank overdraft is 20,000. बराबर, that they have given. Bank overdraft 20,000. And if we know the value of bank overdraft, तो dear students, bank overdraft खाली current liabilities नहीं होगा. There can be more to it. तो फिर करंट लायबिलिटी में और एक आइटम क्या लिख सकता है? क्रेडिटर्स. Either we can write creditors, or if you don't want to write creditors, you can write other current liabilities also as well. You can write other current liabilities. कि कुछ तो एक चाहिए जो भी क्रेडिट बाकी के मिलेंगे उसको या तो हम क्रेडिटर्स के सामने बुक करेंगे या तो अदर करंट लायबिलिटीज के सामने बुक करेंगे. और अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो अपना क्रेडिटर भी डैश आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज भी डैश आएगा, व्हाटएवर. बट तब तक अपने को कुछ तो लिख के रखना पड़ेगा. सो वी विल बी राइटिंग क्रेडिटर
एंड क्रेडिटर को ब्लैंक रखता है। अभी तक हमें क्रेडिटर पता नहीं है, दैट वी विल बी सर्चिंग। करंट लायबिलिटीज का टोटल समझो 80,000 मिला तो क्रेडिटर 60,000, करंट लायबिलिटीज का टोटल समझो 20,000 ही मिला तो फिर क्रेडिटर्स विल बी नील, कोई क्रेडिटर्स नहीं है वो सब में, ऐसे अपन एज्यूम करेंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज द लायबिलिटी साइड। सो लायबिलिटी साइड में यू हैव शेयर कैपिटल, यू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसका वैल्यू दिया हुआ है, यू हैव ओन फंड्स व्हिच इज ओन फंड्स जो मिलेगा नहीं, there is no long term loan specifically given in the question, then current liabilities में you have bank overdraft given as 20,000 and creditors अपने लिख के रखा है, creditors भी लिख सकते हो या you can write other current liabilities as well, कुछ भी लिख सकते हो। so either creditor और other current liabilities, जो blank रखा है, जो total के बाद ही पता चलेगा जब current liabilities का total आएगा। इतना तक हो गया अपना liability side। then let's move on to the asset side। asset side में fixed assets तो है, just a second। Yes, sir. तो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स तो है, सो आई हैव रिटन फिक्स्ड एसेट्स, वी डोंट नो द वैल्यू, कहीं तो वैल्यू नहीं है, बराबर, फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू है, बट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे हम बैलेंस शीट में कहीं भी दिखा नहीं रहे, बिकॉज दिस इज एन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट जिसमें वर्किंग कैपिटल नहीं दिखने वाला है, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है। देन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स के लिए देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बोला, देखो देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स, सो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, सो नो इन्वेस्टमेंट्स आर देयर इन द ऑन द एसेट साइड। Then you have current assets. Current assets include stock, debtor and cash. तो current assets में लिखा है stock, debtors and cash और it is in the ratio of 11:5:4। तो 11:5:4 में 11:5:4 में तो तब पता चलेगा जब उसका टोटल पता चलेगा, बराबर है कि नहीं। जब भी करंट एसेट्स का टोटल आएगा वी विल बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ 11:5:4। सो एसेट साइड में दो ही एसेट्स है, एक फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बराबर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, वो सब फिक्टिशियस एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, वो कुछ भी नहीं है। ओके, तो वैसे भी हम लोग ऐसे बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स को एज्यूम करते ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला ही नहीं है। तो फिर एसेट्स में दो ही पार्ट है, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। सो दिस इज हाउ आवर बैलेंस शीट इज गोइंग टू बी, ठीक है। और ये बैलेंस शीट को हम सॉल्व करता है। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन डज नॉट गिव्स एनी बैलेंस शीट, बराबर है, एक क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट दिया है, मिसिंग फिगर है, क्वेश्चन मार्क के साथ बैलेंस शीट दिया है, तो थोड़ा इजी होता है क्योंकि वही सेम बैलेंस शीट हमें कॉपी डाउन करना है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, सो यू हैव टू थिंक फॉर द आइटम्स व्हिच आर देयर और वही आइटम्स लिखना है। नहीं तो आप गलती से यहाँ पे लोन लिख बैठे तो ये पूरे बैलेंस शीट में आप लोन ढूंढने जाओगे, एग्जैक्टली, और कोई लोन है ही नहीं, तो आप वो लोन मिसिंग लोन फिगर के लिए यू विल बी लाइक कि वो लोन कितना है उसके लिए आपको हंट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। सो जो भी रिलेवेंट आइटम्स है वही लिखना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट विद द सम। चलो, सो लेट्स बिगिन विद द सम नाउ। सबसे पहला द रेशियो दैट वी हैव इज करंट रेशियो, बराबर है। करंट रेशियो का वैल्यू है 2.5:1। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। Now again the same problem, we neither have current assets nor do we have current liabilities, बराबर है। करंट एसेट्स का भी टोटल नहीं है, करंट लायबिलिटीज का भी टोटल नहीं है, सो ये वाला रेशियो हम सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल। करंट रेशियो नहीं सॉल्व कर सकते तो लिक्विड रेशियो भी नहीं। लिक्विड रेशियो इज क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्विक कुछ भी क्विक नहीं पता और यहाँ पे भी रेशियो क्विक नहीं, लायबिलिटी नहीं पता, सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट दिस एज वेल। Working capital. Now working capital is not a ratio, but we know the mathematical formula for working capital. Working capital is current assets minus current liabilities. Now neither we know current assets nor do we know current liabilities, so working capital भी solve नहीं होगा। Bank overdraft is just an information. Reserves and surplus is an information जो हमने already mention किया है बैलेंस शीट में। Now another ratio, fixed assets to proprietary ratio. Fixed assets to proprietary ratio का formula रहेगा fixed assets टू मतलब अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। तो लेट अस सी, ना फिक्स्ड एसेट्स है, प्रोप्राइटर फंड मतलब टोटल ओन फंड्स, ना ओन फंड्स है, तो ये वाला रेशियो भी सॉल्व नहीं होगा। फिर बोला देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये तो इंफॉर्मेशन है। एंड करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली स्टॉक, डेटर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इन द रेशियो ऑफ 11:5:4, ये भी इंफॉर्मेशन है, बराबर। तो दिस इज द सम।
जहां पे कोई भी रेशियो सॉल्व नहीं हो रहा, यानी स्टार्टिंग में ही हम डेडलॉक सिचुएशन में है। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर डेडलॉक सिचुएशन में है तो ये डेडलॉक सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, एक्स यूज करना पड़ेगा। एक्स का कौन सा वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज शुरुआत में ही हमारे एक भी रेशियो सॉल्व नहीं हो रहा है, वी आर इन अ डेडलॉक सिचुएशन। तो कौन सा वाला रेशियो बोलो? क्विक एंड लिक्विड। क्विक एंड लिक्विड। लिक्विड। क्विक एंड लिक्विड रेशियो आप लोग बोल रहे हो हम लोग कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, बट दैट इज रॉन्ग। हम क्विक एंड लिक्विड रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा लिक्विड रेशियो सॉल्व ही नहीं होगा, हमारे पास नॉन क्विक में स्टॉक है ही नहीं। सो हम लोग एक्स लेके भी उधर अटक जाएंगे, और उनको वो पता है कि क्विक लिक्विड सॉल्व नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया। कौन सा वाला? वर्किंग कैपिटल। मैंने याद है एक स्टेप सम में बताया था, कॉम्बिनेशन क्विक और लिक्विड के बदले यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं बताओ? करंट और करंट एंड वर्किंग कैपिटल। सो इंस्टेड ऑफ क्विक और लिक्विड, आप अगर लिक्विड यूज भी कर लो तो आप लोग कहां पे जाके अटकोगे पता है? लिक्विड का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड का फॉर्मूला है, लिक्विड का फॉर्मूला जो हम कन्वर्ट करते हैं वो क्या करते हैं? करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक एसेट्स। नॉन क्विक में स्टॉक लेते हैं, याद है? यस। नॉन क्विक में स्टॉक लेता है। बट डियर स्टूडेंट, द प्रॉब्लम इज अपने पास स्टॉक नहीं है। देखो बराबर है कि नहीं? स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक ना होने के कारण ये रेशियो सॉल्व ही नहीं होगा, बराबर। सो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, करंट और क्विक का कॉम्बिनेशन लेने के लिए स्टॉक होना जरूरी है। हमने जहां जहां करंट और क्विक का कॉम्बिनेशन लिया ना, वहां पे अपने पास कौन सा इंफॉर्मेशन था बताओ? स्टॉक का इंफॉर्मेशन था, स्टॉक का वैल्यू था वो सब में, यहाँ पे नहीं है। इसीलिए उन्होंने करंट लिक्विड के साथ साथ हमको वर्किंग कैपिटल भी दिया है, तो ये सब में करंट और लिक्विड का कॉम्बिनेशन ही आएगा, करंट और वर्किंग कैपिटल का कॉम्बिनेशन आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो चलो लेट अस सॉल्व दिस करंट और वर्किंग कैपिटल का कॉम्बिनेशन। तो ऑलवेज डू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इन अ सम जहां पे करंट है, लिक्विड है और वर्किंग कैपिटल है, वहां पे आप किसका कॉम्बिनेशन लोगे बताओ? करंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग। Is that clear? Okay, chalo. So current ratio is equals to, how much is the value given for current ratio? 2.5:1. 2.5:1 ये है current ratio, and the formula for current ratio is current assets upon current liabilities is equals to 2.5:1 is nothing but 2.5, बराबर है? Yes. So this is 2.5. अब 2.5 दिया है अपने को, ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी, तो किसको एक्स एज्यूम करें बताओ? करंट लायबिलिटी। So let current liabilities be x, बराबर है? करंट लायबिलिटी को x लिया, एंड इफ करंट लायबिलिटी इज x तो करंट एसेट्स कितना आएगा? सो दैट विल बी करंट एसेट्स अपॉन x will be equals to 2.5. ठीक है, so therefore current assets is going to be 2.5x. 2.5x, करंट एसेट्स मिला 2.5x। अब हमेशा हम कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व करने के लिए लिक्विड रेशियो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड रेशियो नहीं लेने वाले, यहाँ पे क्या लेने वाले बताओ इसको सॉल्व करने के लिए? वर्किंग कैपिटल। So we are going to make use of working capital to solve this. Working capital is given to us as कितना दिया working capital? So this is 1,20,000. A part। दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका A पार्ट है जिसमें अपने करंट रेशियो लिया, और ये आपका B पार्ट है जिसमें आप वर्किंग कैपिटल लेने वाले हो। वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, बराबर है? वर्किंग कैपिटल 1,20,000। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो मैं सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? बताओ व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? Current assets minus current assets minus current liabilities. So I'm going to write here current assets minus current liabilities is equals to 1,20,000, बराबर है? And as per this is concerned, current assets are 2.5:1 जो अपन ने कैलकुलेट किया है, सॉरी 2.5x करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमने कितना एज्यूम किया था?
x is equals to 1,20,000. So फिर 2.5x minus x कितना आएगा? 1.5x is equals to 1,20,000. चलो सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू बताओ. 80,000. 80,000. So x is going to be 80,000. X is equals to 80,000. x मिला. x मिला मतलब क्या मिला जरा बताओ मुझे. करंट लायबिलिटीज. दैट मीन्स करंट लायबिलिटी मिल गया. करंट लायबिलिटी मिला 80,000. और अगर करंट लायबिलिटी मिल गया 80,000 तो करंट एसेट्स भी मिल जाएगा. करंट एसेट्स बताओ अपने को कितना था इक्वेशन फॉर्म में. करंट एसेट्स कितना था? 2.5x था और x अभी मिल गया. x सॉल्व हो गया. सो करंट एसेट्स भी मिल जाएगा. 2.5 into 80,000 2 lakhs. बराबर into 80,000. So this is equals to कितना बोलो? 2 lakhs. करंट एसेट्स भी मिल गया 2 lakhs. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सॉल्व किया है समझा. जब भी हमको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रहेगा, वी हैव टू टेक करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल एंड नॉट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. इज दैट क्लियर? ये हमको समझना है. ठीक है, चलो लेट अस राइट डाउन द वैल्यूज. पहला लिखते हैं करंट लायबिलिटीज. लिखता हूं आउटर कॉलम में. सो आई एम गोइंग टू राइट करंट लायबिलिटीज इन द आउटर कॉलम. एंड करंट लायबिलिटीज कितना है? 80,000 मिला मुझे. सो करंट लायबिलिटी 80. जैसे करंट लायबिलिटी मैंने आउटर कॉलम में लिखा, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मुझे मिलेगा बैलेंसिंग फिगर. सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स बताओ जरा. 40,000. 40 60 ना, 80 है वो. So creditors 60,000. I hope this is clear. Yes sir. Current liability, sorry, current assets. Current assets कितना मिला मुझे? 2 lakhs. Yes sir. Current assets are 2 lakhs. अभी ये अंदर का स्प्लिट अप चाहिए. Exactly. So current liabilities में 80,000 टोटल करंट लायबिलिटीज, उसमें से बैंक ऑर्डर 20,000 ऑलरेडी पता था, तो रिमेनिंग विल बी करेक्ट क्रेडिटर्स, दैट इज 60,000. क्रेडिटर्स कैन आल्सो बी रिटन एज अदर करंट एज लायबिलिटीज. कुछ भी लिखो, क्रेडिटर लिखो, अदर करंट लायबिलिटी लिखो, 60,000 मिलेगा. बराबर, ये मिल गया. और करंट एसेट्स का हमने टोटल लिखा 2 लाख. अब करंट एसेट्स में है स्टॉक, डेटर्स और कैश. अब स्टॉक, डेटर्स और कैश का कॉम्बिनेशन क्या है वो चेक करते हैं. उसके लिए अपने को क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था बताओ. करंट एसेट्स includes only stock, debtors and cash in the ratio of क्या बोला है? 11:5:4 respectively. यानी डियर स्टूडेंट, once we get the total of current assets, हम लोग अंदर का स्टॉक, डेटर्स और कैश ढूंढ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने को रेशियो दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? 11:5:4 है स्टॉक, डेटर और कैश का रेशियो. 11:5:4 मेरे ख्याल से टोटल 20 हो रहा है. Okay? Yes. So let us solve that now. तो पहला हम सॉल्व करते हैं स्टॉक. तो स्टॉक कितना आएगा वो देखते हैं. तो स्टॉक विल बी इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट पॉइंट हम ले रहे हैं जहां पे हमको स्टॉक मिलेगा. सो स्टॉक विल बी इक्वल्स टू, टोटल इज 2 lakhs. 2 lakhs करंट एसेट्स का टोटल है, उसको स्प्लिट करना है. और स्टॉक का कितना आएगा बताओ. 2 lakhs का कितना है? स्टॉक 11 है ना. सो इट विल बी 11/20. So that is going to be, stock is going to be equals to 1,10,000. बराबर है. तो स्टॉक 1,10,000. स्टॉक के बाद डेटर्स. एंड डेटर्स आर 2 लाख का कितना? 50,000. डेटर्स 5/20 ना. So debtors are 5/20, so that are going to be 50,000. Cash balance is 40. Debtors 50,000 and cash balance जो आएगा वो है remaining 4/20. Okay, so cash is going to be 2 लाख का into 4/20. So एक बार टोटल मिला तो हम लोग को तीनों भी आइटम्स मिल जाएगा क्योंकि तीनों का रेशियो दिया है ये सब में. So that is going to be 40,000 cash balance. I hope this is clear. So तीनों भी आइटम मिल गए, स्टॉक, डेटर एंड कैश. ये तीनों आइटम्स हमको रेशियो के हेल्प से मिल गए. So I'm going to write it in the inner column, stock, debtor and cash. So stock I'm going to write as
1,10,000 ये आया मुझे स्टॉक. देन स्टॉक के बाद आई एम गोइंग टू राइट डेटर्स. सो डेटर्स मिला मुझे. डेटर कितना मिला था? 50 ना. डेटर 50,000 एंड डेटर के बाद आया कैश बैलेंस एंड कैश बैलेंस आ रहा है 40,000. आई होप दिस इज क्लियर. ये स्प्लिट अप भी हो गया. क्लियर विद दिस? ठीक है. देन डियर स्टूडेंट्स अपने को बचा है अभी रेशियोज कौन से बचे हैं. तो रेशियो बचा एक लिक्विड रेशियो बचा. लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो. ठीक है. चलो क्विक रेशियो चेक करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो बताओ. क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी. क्विक लायबिलिटीज. जरा देखो क्विक एसेट्स कौन से हैं यहाँ पे. क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है? डेटर और कैश दोनों है. हाँ. और क्विक लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स भी है. हाँ. तो वो रेशियो खाली फुकट का क्वेश्चन में दिया है, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारे क्विक एसेट्स भी है और सारे क्विक लायबिलिटीज भी है. तो रेशियो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं क्योंकि हमको उसका रेशियो का आंसर से कोई मतलब नहीं है बिकॉज कोई भी चीज मिसिंग नहीं है. अपने को पूरे करंट एसेट्स मिल गए और पूरे करंट लायबिलिटी मिल गए. तो रेशियो का कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में. इज दैट क्लियर? ओके. वो रेशियो खाली फुकट दिया है, उसको यूज भी करोगे तभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि सारी चीज मिल चुका है आपको. डन. ठीक है. तो उसका कोई काम नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट का इंफॉर्मेशन है वो तो हमने लिख लिया. रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमने लिख लिया. तो खाली एक ही रेशियो बचा हुआ अपने पास. कौन सा वाला? फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो. जरा चेक करते हैं. फिक्स्ड एसेट्स भी मिसिंग है. प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कौन सा? प्रोप्राइटर फंड मतलब कौन सा फंड? ओन फंड. ओन फंड भी मिसिंग है. तो दोनों भी मिसिंग है. बराबर है. तो वापस अपने पास दोनों भी मिसिंग है लेकिन अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको. द रीजन बीन कुछ भी आगे कोई भी दूसरा रेशियो बचा नहीं है. यानी ये लास्ट रेशियो है अपने पास. तो इसको तो लेना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो वी हैव टू यूज दिस रेशियो. चलो फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो. इसमें ना फिक्स्ड एसेट्स है ना प्रोप्राइटरी फंड है फिर भी हमको रेशियो लेना ही पड़ेगा बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो लेट अस यूज दैट रेशियो. सो फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड. कितना दिया? फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल्स टू 0.75 इज टू 1. हाँ. बराबर. विच इज नथिंग बट क्या है फॉर्मूला? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल्स टू 0.75. दोनों भी मिसिंग है तो एक को एक्स लेना पड़ेगा. बताओ किसको एक्स लूं? प्रोप्राइटर फंड. वेरी गुड. प्रोप्राइटर फंड भी एक्स. सो प्रोप्राइटर फंड को एक्स एज्यूम किया तो फिर क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0.75. बराबर है. सो दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.75 एक्स. बराबर है. फिक्स्ड एसेट्स मिला 0.75 एक्स. प्रोप्राइटर फंड को एक्स लिया. फिक्स्ड एसेट 0.75 एक्स आया. प्रोप्राइटर फंड को हमने एक्स एज्यूम किया है. बराबर है. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी रेशियो नहीं है हमारे पास. हमने सारे रेशियो यूज कर लिए. कोई भी रेशियो नहीं है. लिक्विड रेशियो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है क्योंकि लिक्विड रेशियो में ना फिक्स्ड एसेट्स आता है ना प्रोप्राइटरी फंड आता है. तो लिक्विड रेशियो लेके कोई फायदा नहीं है और बाकी कोई भी रेशियो नहीं है. तो बताओ ये सॉल्व कैसे होगा? हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? कुछ तो इक्वेशन हमको लेना ही पड़ेगा बिकॉज बिना इक्वेशन का एक्स सॉल्व नहीं होगा. सो व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक? क्योंकि कोई रेशियो तो हमारे पास है नहीं. सो वी हैव टू टेक सम इक्वेशन. और वो इक्वेशन हमको कहां से देखना पड़ेगा? वो इक्वेशन हमको बैलेंस शीट में से बनाना पड़ेगा. तो बताओ आप बैलेंस शीट में से क्या इक्वेशन बनाओगे कि आपका फिक्स्ड एसेट्स और आपका प्रोप्राइटरी फंड सॉल्व होएगा? लायबिलिटी इक्वल्स एसेट. लायबिलिटीज
equals asset. Yeah, please repeat. Liabilities. Liabilities equals assets. Very good. Liabilities equals assets. So you are going to take that as an equation. क्योंकि देखो आपको जो भी मिसिंग है ना यहाँ पे, एक फिक्स्ड एसेट्स मिसिंग है और एक प्रोप्राइटर फंड मिसिंग है. व्हाट डज दैट फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटर फंड मिसिंग बता रहा है? फिक्स्ड एसेट्स मिसिंग है मतलब एक एसेट आइटम मिसिंग है, बराबर है, और एक कौन सा आइटम मिसिंग है बताओ? Fixed assets. लायबिलिटी आइटम मिसिंग है. ओके, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों भी आइटम मिसिंग है और वे दोनों चाहिए. तो उसके लिए हमको क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट साइड. Yes. ये बेसिक जो बैलेंस शीट का इक्वेशन है, लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑलवेज टैलीज. तो ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग दिस. सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलवेज टैलीज. इसीलिए डियर स्टूडेंट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, वॉट एवर यू वांट टू राइट, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज. तो मैं लायबिलिटीज से शुरू कर रहा हूं. टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल Assets. एसेट्स. ये मेरा बैलेंस शीट इक्वेशन में लिख रहा हूं. और ये सबको पता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल इक्वल होता है. लेकिन वो अपने को पता है अपने को, लेकिन उसको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लेना है. सो टोटल लायबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सम का. ये याद नहीं रहेगा तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स. ठीक है, अब जरा देखो लायबिलिटीज के टोटल में बताओ क्या क्या आइटम आएंगे. बताओ लायबिलिटी का टोटल में क्या क्या आइटम है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? Proprietors fund. प्रोप्राइटर्स फंड, बिकॉज आई डोंट हैव टू राइट शेयर कैपिटल. मुझे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कोई नहीं बताएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल रिजर्व्स मैं इनर में लिखता हूं और मुझे टोटल करने के लिए आउटर कॉलम चाहिए. और आउटर कॉलम में क्या लेना है मुझे? प्रोप्राइटर Fund. फंड लेना है. ओके, सो ओन फंड या प्रोप्राइटर फंड. और क्या आएगा बताओ? Current liability. करंट लायबिलिटीज. तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द आउटर कॉलम का टोटल, दैट इज करंट लायबिलिटी. सो लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? लायबिलिटी साइड में प्रोप्राइटर फंड प्लस Current liability. करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज, बराबर है. ये लायबिलिटी साइड है. इज इक्वल टू एसेट्स में मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट्स है, Yes. और एसेट्स में क्या है? प्लस करंट एसेट्स. करंट एसेट्स. तो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स है. क्लियर? ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. तो इसको ये जो हमेशा जो अपना नॉर्मल टैलिंग फिगर रहता है, ये वो टैली को अपन यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं और उसके हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं. तो प्रोप्राइटर फंड प्लस करंट लायबिलिटी. अब जरा चेक करते हैं. प्रोप्राइटर फंड अपने पास यहाँ पे है तो नहीं, ठीक है, लेकिन अपने प्रोप्राइटर फंड एज्यूम किया है. Yes. बताओ प्रोप्राइटर फंड एज्यूम क्या किया हमने? X. एक्स. तो इक्वेशन में हम लिखेंगे एक्स. प्रोप्राइटर फंड एक्स एज्यूम किया है, एक्स प्लस करंट लायबिलिटी. तो हमको मिल गया था करंट लायबिलिटी 80,000 ना. Yes. सो एक्स प्लस 80,000 इज इक्वल्स टू ए फिक्स्ड एसेट्स भी मिसिंग है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स अपने को यहाँ पे एज्यूम करके मिला था. व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स? कितना मिला है बताओ इक्वेशन के लिए? 5x. 0.75x. 75x ये फिक्स्ड एसेट्स हमको मिला है, प्लस करंट एसेट्स. एक करंट एसेट्स आई थिंक 2 लाख मिला है ना. Yes. करंट एसेट्स 2 करंट लाख. लायबिलिटीज. करंट एसेट्स 2 लाख. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे? तो x इसको और इसको चेंज कर रहा हूं, तो x इधर ही रहेगा और उधर से बोलो क्या आएगा? 0.75x इधर आएगा. सो ये इधर आएगा तो माइनस हो क्या आएगा? माइनस 0.75x इज इक्वल टू 2 लाख इधर ही रहेगा. और ये 80,000 जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जाएगा. और जब 80,000 राइट हैंड साइड में जाएगा वो क्या होके जाएगा? माइनस. क्योंकि प्लस जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है तो माइनस होके जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये कितना आ रहा है? 1 माइनस 0.75 0.25. सो 0.25x इज इक्वल्स टू 1,20,000, बराबर है. ए क्लियर?
बताओ x कितना? Yes, sir. 4 lakh 48,000. 4 लाख 80,000. 80,000 दिस इज x. x मतलब क्या मिला बताओ? x मतलब क्या मिला? Proprietors fund. Writers प्रोपराइटर fund. फंड ना. सो प्रोपराइटर फंड मिल गया. सो प्रोपराइटर फंड इज इक्वल्स टू 4 लाख 80. ये मिल गया. और प्रोपराइटर फंड मिला तो फिक्स्ड एसेट्स भी मिलेगा. बोलो फिक्स्ड एसेट्स कितना आया था अपने को इक्वेशन फॉर्म में? 0.75. यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स आया था 0.75x आया था फिक्स्ड एसेट्स. बराबर है. x सॉल्व हो गया. सो दिस इज नथिंग बट 0.75 इनटू कितना आएगा बताओ? 4,80,000. इनटू 4 लाख 80. 3,60,000. तो कितना आया बोलो फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स आर इक्वल्स टू 60,000. 3,60,000 फिक्स्ड एसेट्स मिल गया. $3,60,000. I hope this is clear. समझा सबको? ओके. सो प्रोपराइटर फंड मिला 4,80,000, फिक्स्ड एसेट्स मिला 3,60,000. चलो लेट मी राइट इट ओवर देयर. Proprietor fund मिला 3,60,000. I'm going to write the value of proprietor fund now. 3,60,000. Is that clear? Okay. नहीं sorry, proprietor fund 3,60,000 नहीं. Proprietor fund कितना मिला? 80,000. 4,80,000. Proprietor fund 4,80,000 and fixed assets मिला 3,60,000. Done? Okay. ये जैसे प्रोपराइटर फंड मिला उसमें से रिजर्व्स ऑलरेडी पता है. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व? 80,000. तो फिर बताओ शेयर कैपिटल कितना आएगा? 4 lakhs. 4 लाख. तो शेयर कैपिटल मिल गया 4 लाख. आई होप दिस इज क्लियर. सारे चीजें सॉल्व हो गए. बराबर. ईच एंड एवरी आइटम वी हैव नाउ. अब जरा बैलेंस शीट का टोटल करता है. लायबिलिटी साइड का टोटल करता हूं. सो हाउ मच इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड? 5,60,000. ये लायबिलिटी का टोटल है. एंड लेट अस चेक द टोटल ऑफ एसेट्स एज वेल. Yeah, same. एसेट्स का भी टोटल 5,60,000. Yeah. समझा सबको? Yes, sir. ओके. सो दिस इज द सम जहां पे एक रेशियो अपने को यूज ही नहीं करना था. स्टार्टिंग में डेडलॉक सिचुएशन था तो हमको कॉम्बिनेशन यूज करना था और ये सब ने मैं करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल का कॉम्बिनेशन यूज किया. करंट एसेट्स को सॉल्व करने के लिए उसका करंट एसेट्स का स्टॉक डेटर्स और कैश का रेशियोज दिया था. तो करंट एसेट्स में स्टॉक डेटर्स और कैश मिल गए और फिक्स्ड एसेट्स और प्रोपराइटर फंड दोनों भी मिसिंग था. तो हमने x लेके सॉल्व किया और सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन लिया लायबिलिटीज साइड का टोटल इज इक्वल्स टू एसेट्स साइड का टोटल. वो इक्वेशन लेके दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. ये इक्वेशन लेना है, ये याद रखना है. और वो इक्वेशन लेके हमने सॉल्व किया. हमको प्रोपराइटर फंड और फिक्स्ड एसेट्स मिल गया. इज दैट क्लियर? दिस इज द पॉइंट एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. क्लियर विद दिस? ठीक है. नेक्स्ट सम विल बी सम नंबर 11. आपका टेक्स्ट बुक में कौन सा है? टेक्स्ट बुक में दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39. Yes, sir. इलस्ट्रेशन 39 129. है ना. इलस्ट्रेशन 39 पेज नंबर 129. 121. 9. 129 पेज नंबर 129 इलस्ट्रेशन 39. चलो वो वाला सॉल्व करते हैं. Let us look on to the question. You are given the following figures worked out from the profit and loss account and balance sheet of Z Limited. तो profit and loss account और balance sheet दोनों के figures दिए हुए हैं relating to the year 13-14. और अपने को prepare क्या करना है? Prepare Balance sheet. balance sheet. तो हमें balance sheet prepare करना है. Is that clear? So they have asked us to prepare balance sheet. हमें balance sheet prepare करना है. ठीक है. What is the information be given? Fixed assets दिया हुआ है. Fixed asset net है
आफ्टर राइटिंग ऑफ 3%. ये राइटिंग ऑफ मतलब क्या राइट ऑफ हुआ रहेगा बताओ फिक्स्ड एसेट्स में से? Depreciation. डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने के बाद नेक्स्ट नेट फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 10,50,000. एंड ये जो बैलेंस शीट पे जहां पे आउटर कॉलम का बात है हम लोग तो नेट फिक्स्ड एसेट्स ही बताते हैं. ओके, सो नेट फिक्स्ड एसेट्स अपने पास है 10,50,000. देन they have given fixed asset turnover ratio. Now fixed asset turnover ratio should be based on cost of sales. ऐसा भी बोला है. ठीक है. Finished goods turnover ratio. Now finished goods turnover ratio. Now this is something important dear student. Finished goods turnover ratio. बराबर. ये क्या इंपॉर्टेंट है? नॉर्मली आप करंट लायबिलिटीज में याद है स्टॉक लिखते थे करंट लायबिलिटी में. बराबर है. स्टॉक में आप लोग कोई भी स्टॉक का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे. आप लोग स्टॉक को स्टॉक बोलते थे. बराबर. लेकिन ये सब में जब स्टॉक लिखना है तब स्टॉक को उन्होंने देखो कौन सा वाला स्टॉक बोल के लिखा है? फिनिश गुड्स लिखा है. मतलब दे आर गोइंग टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक. यानी यहाँ पे स्टॉक में ये वाले कंपनी के स्टॉक में फिनिश गुड्स का स्टॉक अलग होगा. और देखो नीचे रॉ मटेरियल करके बोला है. सो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होगा. यानी ये सब में स्टॉक में भी स्प्लिट अप है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक जो एक कंपनी के गोडाउन में होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के गोडाउन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक हम कौन से बता सकते हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, याद है रॉ मटेरियल. WIP भी होता है. एंड थर्ड टाइप इज Finished goods. Finished goods. फिनिश गुड्स. उसमें से अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो फिनिश गुड्स है. यहाँ पे कुछ रेशियो बोला है और मटेरियल बोला है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल है. लेकिन WIP के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में. सो देयर इज नो WIP इन द सम. क्लियर. सो दो टाइप ऑफ स्टॉक्स है अपने पास, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. आज तक के सब में खाली स्टॉक था. ये सब में स्टॉक में भी स्प्लिट अप है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. क्लियर विद दिस. सो व्हाइल डूइंग द बैलेंस शीट, व्हाइल राइटिंग द बैलेंस शीट, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि स्टॉक में भी स्प्लिट अप है. ओके. देन you have rate of gross profit to sales. This is nothing but gross profit ratio. Then you have net profit before tax to sales. तो ये नया रेशियो बना के दिया, net profit before tax to sales. Then fixed assets, fixed charges cover. अब ये क्या है? कुछ नया रेशियो है, fixed charges cover. डिबेंचर इंटरेस्ट 14%. ये उसका मतलब आपके पास 14% डिबेंचर है क्वेश्चन में, क्योंकि उसके ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट 14% के हिसाब से मिलेगा. सो आपके पास 14% डिबेंचर्स है बैलेंस शीट में. दैट यू हैव टू रिमेंबर. Debt collection period 1.5 months. Then material consumed to sales 30%. Stock of raw material in terms of number of months consumption 3 months. ये months में रहेगा क्योंकि उन्होंने बोला in terms of number of months. Current ratio is 2.4. Liquid ratio is 1 and reserves to capital is 0.21. These are the information given. ठीक है. With this information, the first job is to frame balance sheet. क्योंकि उन्होंने कोई भी बैलेंस शीट फ्रेम करके दिया नहीं है क्वेश्चन मार्क के साथ. हमको बैलेंस शीट फ्रेम करना है. सो लेट अस फ्रेम द बैलेंस शीट. पहला लिखते हैं लायबिलिटीज. आई होप यू आर फ्रेमिंग द बैलेंस शीट विद मी. ओके. Yes, sir. चलो लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में बताओ पहला आइटम कौन सा होगा? Share capital. शेयर कैपिटल. लायबिलिटीज में पहला आइटम शेयर कैपिटल. सो आई हैव रिटन शेयर कैपिटल. ठीक है. शेयर कैपिटल इज नॉट गिवन टू अस. शेयर कैपिटल के बाद दूसरा आइटम रहेगा रिजर्व्स, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है देखो रिजर्व्स टू कैपिटल बोला है कि नहीं. तो दूसरा आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द सेकंड आइटम. तो दोनों का टोटल इज ओन फंड्स. सो दोनों का टोटल ओन फंड्स रहेगा. देन आई हैव रिटन डिबेंचर्स. अब डिबेंचर बोलो, ये सब में डिबेंचर कितना % डिबेंचर है? With the help of sum we can make it out कि डिबेंचर जो है इंटरेस्ट अगर 14% मिल रहा है तो जो डिबेंचर है वो कितना % वाला डिबेंचर है? 14%. 14%. और वो भी डिबेंचर है कि नहीं है वो भी मुझे उधर से ही पता चला. देयर इज अ फिक्स्ड चार्जेस कवर व्हिच इंक्लूड डिबेंचर इंटरेस्ट. तो उसका मतलब डिबेंचर तो रहेगा ही क्वेश्चन में. सो डिबेंचर क्वेश्चन में रहेगा. एंड डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी लाइक कितना डिबेंचर्स रहेगा बताओ? डिबेंचर्स आर 14%. 14% डिबेंचर. ठीक है. देन यू हैव डिबेंचर्स के बाद यू हैव करंट लायबिलिटीज.
as far as current liabilities is concerned, there is nothing been given as far as current liabilities are there. कुछ नहीं बोला है ना, स्टॉक बोला है, सॉरी ना बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है, ना स्टॉक सॉरी क्रेडिटर्स बोला है, कुछ भी नहीं बोला है. सो आई एम गोइंग टू राइट करंट लायबिलिटी एज इट इज. करंट लायबिलिटीज को मैं जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं. क्लियर? ठीक है. देन आई एम मूविंग ऑन टू द एसेट साइड्स. एसेट साइड में सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स. नाउ फिक्स्ड एसेट्स उन्होंने नेट वैल्यू दे दिया है. हाउ मच इज द फिक्स्ड एसेट्स का नेट वैल्यू? 10,50,000. 10,50,000. So straight away I'm going to write fixed assets net. So net value is given to us and straight away in the outer column मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है. ये 3 कॉलम इसीलिए आपको दिख रहा है क्योंकि मुझे स्टॉक को भी स्प्लिट अप करना है. उसके लिए भी मैंने एक अंदर कॉलम बनाया है. So यहाँ पे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं बिकॉज स्टॉक का भी स्प्लिट अप है, इसके लिए थर्ड कॉलम और एक बनाया है. So I'm going to write it in the outer column 10,00,000. This is your fixed assets. A clear 10,50,000. Then fixed assets के बाद there is nothing been mentioned as far as investments are concerned. कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, so I'm not going to write any investment का वैल्यू. ठीक है. Then comes current liability, current assets. Current assets में सबसे पहला आइटम स्टॉक है, लेकिन ये सब में you have to remember स्टॉक में भी स्प्लिट अप है. सो स्टॉक को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. स्टॉक में बताओ ये सब में क्या क्या है. स्टॉक में देयर आर टाइप ऑफ स्टॉक्स. बोलो कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं यहाँ पे? Raw material and finished Material है. goods. So you have raw material का स्टॉक, raw material का स्टॉक, and then you have Cash. finished goods का स्टॉक. So you have raw material का स्टॉक and you have finished goods का स्टॉक. I hope this is clear. ठीक है. So stock में भी split up है. Then you have debtors and then you have cash and bank balance. Debtors और cash and bank balance मुझे कैसा पता चला? क्योंकि देखो इधर debt collection period है, मतलब debtors है, और cash and bank balance तो रहता ही है क्वेश्चन में, एक मिनिमम कैश, इसीलिए मैंने cash and bank balance लिख के रखा है. अगर नहीं रहेगा ये सब में कैश तो लास्ट में वो नील आ जाएगा, बट लिख के तो रखना है हमें cash and bank balance current assets में. Clear with this? Understood इसका बैलेंस शीट स्टाइल क्या है? ओके. सो ये सब में स्टॉक में वी हैव 2 टाइप ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. आज तक जो भी सम हम लोग सॉल्व करते उसमें खाली स्टॉक रहता था, स्टॉक का आगे स्प्लिट अप नहीं था. ये सब में स्टॉक में भी स्प्लिट अप है. रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. दिस आर करंट एसेट्स दैट वी हैव. और लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड 14% डिबेंचर्स है और करंट लायबिलिटीज है, लेकिन करंट लायबिलिटी का कोई स्प्लिट अप नहीं है. क्लियर? ठीक है. सो लेट अस सॉल्व दिस नाउ. चलो सबसे पहला दे हैव गिवन टू अस. सबसे पहला अपने पास क्या है बताओ? पहला है अपने पास फिक्स्ड एसेट्स. वो तो इंफॉर्मेशन है, हमने लिख लिया. पहला रेशियो कौन सा दिया है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेस करना है. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो. चलो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. हाँ, क्या रहेगा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स? बोलो. Cost of sales. हाँ, so fixed assets turnover ratio, fixed assets turnover ratio ये पहला लेके सॉल्व कर रहे हैं. fixed assets turnover ratio is equals to कितना दिया है? fixed assets turnover ratio 2 दिया है ना? Times. 2 times. चलो, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला शुड बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 2. अब ये दोनों में से आपको पता क्या है? फिक्स्ड एसेट्स पता है, क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है. हाउ मच इज द फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिवन टू अस? 10. So COGS upon 10,50,000.
इज इक्वल टू 2। चलो बोलो COGS कितना आएगा फिर? 21 lakhs. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ 21 लाख COGS। Yes. COGS मिल गया 21 lakhs. आई एम नॉट गोइंग टू राइट COGS इन बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट आइटम नहीं है. सो याद रखो अपने को यहाँ से COGS मिला, वो काम में आएगा आगे. ठीक है, एक रेशियो सॉल्व हो गया. दूसरा रेशियो बोलो कौन सा है? फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो. चलो फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो यूज करते हैं. So finished goods turnover ratio is the another ratio that we are going to use. Finished goods turnover ratio. चलो बोलो finished goods turnover ratio का फॉर्मूला क्या आएगा? Finished goods turnover ratio कितना दिया है? Finished goods turnover ratio is equals to 6 दिया है ना? 6. बोलो फॉर्मूला बोलो फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो का. COGS upon. COGS. फिनिश गुड्स इज नथिंग बट स्टॉक. Yes. फिनिश गुड्स मतलब स्टॉक है, बराबर. सो द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज नन अदर देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो. Yes. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला? COGS. Cost of sales upon finished goods. COGS अपॉन स्टॉक लेते हैं, लेकिन स्टॉक मतलब कौन सा वाला स्टॉक है, तो वी हैव टू स्पेसिफाई इन दिस सम. दिस इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू 6. बराबर है. वी नो द वैल्यू ऑफ COGS. COGS ऊपर ही ढूंढ लिया है. हाउ मच इज COGS? 21 lakhs अपॉन फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू 6. बराबर है. सो डियर स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी 21 lakhs अपॉन 6. ये 6 नीचे आएगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल्स टू फिनिश गुड्स. 3,50,000. कितना आया फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स आर इक्वल्स टू 3,50,000. 3,50,000. फिनिश गुड्स मिला 3,50,000. फिनिश गुड्स इज अ बैलेंस शीट आइटम, सो आई एम गोइंग टू राइट फिनिश गुड्स का वैल्यू. ठीक है, चलो फिनिश गुड्स लिखता हूं. लेकिन फिनिश गुड्स ये जो इनर कॉलम मैंने बनाया ना, थर्ड वाला, बराबर, उसमें लिखूंगा क्योंकि मुझे दोनों स्टॉक का टोटल करके बाहर लेके जाना है. सो फिनिश गुड्स आई एम गोइंग टू राइट इट इन द इनर कॉलम जो मैंने ड्रॉ किया स्पेशली फॉर दिस सम. कितना मिला बोलो फिनिश गुड्स? 3,50,000. ठीक है, फिनिश गुड्स का वैल्यू मिल गया 3,50,000. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, फिनिश गुड्स भी सॉल्व हो गया. फिनिश गुड्स के बाद नेक्स्ट कौन सा रेशियो दिया है वो तो बताओ उन्होंने. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स. ओके, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, बट ग्रॉस प्रॉफिट किसके साथ दिया है? टू सेल्स. यहां पे देखो क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स है क्या? नहीं है. नहीं है, सेल्स नहीं है. लेकिन हमारे पास क्या है बताओ? सेल्स नहीं है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बराबर है. हाँ. तो सेल्स नहीं है लेकिन कॉस्ट है हमारे पास. तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करने आता है. हमने एक बार सीखा था कन्वर्ट करने के लिए, तो वो वापस एक बार यूज करते हैं. कन्वर्शन कैसा करते हैं वो हम चेक करते हैं. सो डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू यूज दिस रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में यूज करूंगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स के ऊपर दिया है, सेल्स नहीं है, बट आई नो टू कन्वर्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट मेथड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स. तो चलो वो वाला रेशियो, वो वाला फॉर्मूला यूज करके सेल्स ढूंढते हैं. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस कितना बोला है? इक्वल्स टू कितना परसेंट बोला है? 20. ये क्या हो गया? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 25%. ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 25%. ये 25% किसका? Sales. ऑफ सेल्स. याद है ना, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ऐसा लिखते हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सेल्स. ये लेकिन सेल्स मिसिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, लेकिन मुझे कन्वर्ट कॉस्ट है मेरे पास. सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट. कन्वर्शन सिखाया था ना, 25% मतलब कितना? 25 अपॉन 100. ऑफ मतलब इनटू या ऑफ सेल्स. 25% ऑफ सेल्स. ये 25% मतलब कितना जरा बताओ? 25 वन जा
and 25 4s are, so this is nothing but 1/4 of sales. ठीक है, ये बताओ 1/4 of sales is how much on cost, बताओ 1/4 of sales is 5,25,000. 1/4 of sales is 1/5. Fifth. 1/5 of. 1/5 नहीं होता है, सेल्स से कॉस्ट में जाने के लिए बढ़ता नहीं है, कम होता है. ओके, सो 1/4 of sales is 1/3 on Cost. cost. I hope this is clear. Cost is nothing but cost of goods sold. Okay, clear with this? So gross profit ratio is 25% of sales बोला है, sales नहीं है, so we have converted sales to cost. तो sales को हमने cost में convert किया, और जब sales को cost में convert किया तो 1/4 का 1/3 हो गया. Okay, चलो, now we are in a position to get gross profit. So therefore gross profit is equals to 1/3 into 21 lakhs. Cost 21 lakhs है. So this is nothing but कितना कितना आ रहा है 7 lakhs. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है 7 lakhs. एंड एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो हमको सेल्स भी मिलेगा. सेल्स का फॉर्मूला बोलो, सेल्स विल बी इक्वल्स टू, बोलो क्या? COGS plus profit. COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमको सेल्स ढूंढना है. तो 21 lakhs प्लस 7 lakhs. सो बताओ सेल्स कितना आया सम में? 8 lakhs. 8 lakhs. तो सेल्स मिल गया. सो सेल्स इन द सम इज 28 lakhs. सेल्स मिल गया 28 lakhs. लेकिन डियर सेल्स हमको बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं लिखना है, हम सेल्स यूज करेंगे. ये कॉन्सेप्ट समझा ना, ये याद रहेगा ना? क्या किया? दिस इज इंपॉर्टेंट. कन्वर्शन इज इंपॉर्टेंट. तो कन्वर्शन याद रखो, पहले भी सिखाया था, ये सब में भी सिखाया है. व्हाट इज कन्वर्शन, हाउ टू कन्वर्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स टू कॉस्ट, ये बताया है. ठीक है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व हुआ, सेल्स भी मिल गया. ठीक है, ये वाला रेशियो भी सॉल्व हुआ. तो जैसे ही सेल्स मिले, देखो नेक्स्ट रेशियो में काम आएगा. ये नेक्स्ट रेशियो क्या है बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टू सेल्स 16%. चलो ये वाला रेशियो लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टू सेल्स. सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ये बिफोर इंटरेस्ट मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो. Yes. जब बिफोर इंटरेस्ट बोले तो बिफोर टैक्स भी होता है. सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स. कितना दिया है? 16%. ये 16 नहीं है, परसेंटेज है. सो यू हैव टू रिमेंबर, सॉल्व द परसेंटेज रेशियो. 16% बराबर है. तो ये आएगा नेट प्रॉफिट, फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स. बराबर है. अब इधर इनटू 100 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा मुझे. फॉर्मूला में आएगा. क्यों आएगा बताओ फॉर्मूला में इनटू 100? परसेंटेज है इसलिए. तो याद रखना डियर स्टूडेंट, नहीं आएगा, इनटू 100 नहीं आएगा, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी आंसर में 16% लिखा हुआ है. सो आंसर में ऑलरेडी 16% है. सो नो नीड ऑफ राइटिंग इनटू 100, क्योंकि ऑलरेडी आंसर में परसेंटेज है. सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग परसेंटेज रेशियो, याद रखना इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर दिया है उसमें ऑलरेडी परसेंटेज इंक्लूडेड है. क्लियर विद दिस? याद रहेगा ये पॉइंट?
So this is going to be net profit before interest and tax upon sales into 100 का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 16% आंसर में है। तो चलो ये दोनों में से पता क्या है बताओ अभी। Sales. So net profit before interest and tax अपॉन सेल्स, सेल्स कितना 28 lakhs है ना, Yes. हाँ इज इक्वल टू 16%। देखो मैंने परसेंटेज यहाँ पे रखा है, मैंने परसेंटेज को यहाँ पे निकाला नहीं, फॉर्मूला का परसेंटेज वैसा का वैसा रखा है 16%। चलो सो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 16% इनटू, यहां से क्या जाएगा बताओ उधर 28 lakhs। चलो 28 lakhs का 16% करके दो मुझे, 4,48,000. 4,48,000। अब ये 4,48,000 आपको क्या मिला बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट बोलेंगे तो एंड टैक्स भी होता है। सो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिला, जिसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। दिस इज अ पीएनएल आइटम, बराबर है, बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को मिला। सो ये आगे का कोई रेशियो में सॉल्व करने के लिए काम आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कोई तो रेशियो में आगे सॉल्व करने में काम आएगा, फिलहाल कोई बैलेंस शीट में जाके लिखना नहीं है, ठीक है। तो कौन सा रेशियो में सॉल्व करने के लिए यूज आएगा देखो, तो उसी के बाद यानी यही रेशियो होने के बाद उन्होंने फिक्स चार्जेस कवर दिया है, ये नया रेशियो आपके लिए, उसका मैं फॉर्मूला बोलता हूँ फिक्स चार्जेस कवर। ये मतलब हम लोग कितना फिक्स चार्जेस पे कर रहे हैं, और वो लोग कौन सा फिक्स चार्जेस पे कर रहे हैं, सब में डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 14% के हिसाब से, तो उनका फिक्स चार्जेस जो ये सब में पेमेंट करना है वो डिबेंचर इंटरेस्ट है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, सो आई एम गोइंग टू राइट फिक्स चार्जेस कवर का फॉर्मूला, ये पहली बार हम कर रहे हैं और 8 आंसर है। So fixed charges cover, this is new formula for you, fixed charges cover is equals to कितना दिया था 6 ना, am I right, 6 ही दिया है ना कि 8 दिया है, 8 है कि 6, 8 है, 8 है। Fixed charges cover is equals to 8, so that is 8 times. The formula is fixed charges cover। जैसे फिक्स चार्जेस में आपको इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट को कवरेज कितना मिल रहा है उसके लिए आपको लेना पड़ता है फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट पे कवरेज देखना है तो बिफोर इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट देखना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। is equals to upon net profit before interest and tax upon डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने का है, वो इंटरेस्ट उन्होंने अपने को आपको बोला है डिबेंचर इंटरेस्ट है, अपॉन डिबेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8। दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखना, ये नया फॉर्मूला है। सो फिक्स चार्जेस कवर का फॉर्मूला, जिसको मैंने फॉर्मूला शीट में आपको दिया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोल के, यही फॉर्मूला को फॉर्मूला शीट में मैंने क्या बोल के दिया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो फिक्स्ड चार्जेस कवर का मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कितने टाइम इंटरेस्ट कवर हो रहा है। सो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था शीट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट चेक करना है तो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8, बराबर है। अब ये दोनों में से क्या पता है बताओ अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है, कितना है वो 4,48,000। सो 4,48,000 अपॉन डिबेंचर इंटरेस्ट वो नहीं पता, सो अपॉन डिबेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8। चलो डिबेंचर इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, डिवाइड होगा, तो बताओ फाइनल आंसर मुझे बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट का कितना आ रहा है, 56,000। सो डिबेंचर इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद डिवाइड होगा,
तो डिवाइड होने के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट आता है 56,000। ये समझा सबको? आया 56,000? हाँ, yes. बराबर। लेकिन ये डिबेंचर इंटरेस्ट है। देखो अपने को बैलेंस शीट में लिखना है, वो डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं लिखना है, अपने को बैलेंस शीट में डिबेंचर लिखना है। बराबर है कि नहीं? Yes. ओके अपने को ये फॉर्मूला से अपने को डिबेंचर इंटरेस्ट मिला, लेकिन अपने को तो डिबेंचर चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट डिबेंचर फ्रॉम डिबेंचर इंटरेस्ट, जरा बताओ। डिबेंचर इंटरेस्ट से डिबेंचर कैसे ढूंढेंगे? जो 14% दिया 14% दिया है, सो दैट्स व्हाई उन्होंने वो परसेंट मेंशन किया है। ये परसेंट मेंशन करने का काम यहाँ पे आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि डिबेंचर इंटरेस्ट कितना परसेंट के हिसाब से मिल रहा है, 14% है। सो डियर स्टूडेंट दैट परसेंटेज यू आर गोइंग टू राइट। सो डिबेंचर इंटरेस्ट 56,000 का आया है। नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट जब मिल गया, उसके बाद आपको डिबेंचर इंटरेस्ट 14% वाला है, वो लिख के आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो डिबेंचर इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, ये सब में डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू, एज पर द सम इज कंसर्न, डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी 14% ऑफ किसका? डिबेंचर्स का। डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी 14% ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर 14% का है। ठीक है, सो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया? बोलो 56,000 Yes. इज इक्वल टू 14% ऑफ, मतलब इनटू डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स हमें पता नहीं, बट डिबेंचर्स का 14% है इंटरेस्ट। तो चलो डिबेंचर मिल जाएगा। ये 14% बोलो क्या होएगा? इधर जाके डिवाइड होएगा। सो 56,000 अपॉन 14% इज इक्वल टू डिबेंचर। 4 तो lakh. बताओ डिबेंचर कितना आ रहा है जिसके ऊपर 14% के हिसाब से 56,000 आ रहा है, तो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर? बोलो डिबेंचर विल बी इक्वल टू 4 lakh. 4 lakhs. डिबेंचर मिल गया 4 lakhs. So with the help of debenture interest we have calculated the value of debentures and debenture का वैल्यू हमको 4 lakh मिल गया। चलो लेट मी राइट इट इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट वाला आइटम है। सो डिबेंचर इज द बैलेंस शीट वाला आइटम एंड आई हैव गॉट इट एज 4 lakhs। ठीक है, यहां तक हम सॉल्व कर पाए। ये सब रेशियो स्ट्रेट अवे लाइन से ही जा रहा है। सो एवरी रेशियो वी आर टेकिंग, और वो लाइन से हम लोग वो रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रेशियो है बताओ? डेट कलेक्शन पीरियड। ए डेट कलेक्शन पीरियड जो दिया है वो मंथ्स में दिया है। Yes. मैंने आपको बोला था मंथ्स में कभी सॉल्व नहीं होता, तो मंथ्स को पहले किस में कन्वर्ट करना है बोलो? Data turnover ratio. डेटर टर्नओवर रेशियो, टाइम्स में कन्वर्ट करना है। बराबर, तो कैसा Yes. डेटर कलेक्शन पीरियड से डेटर टर्नओवर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या था? तो डेटर 12 कलेक्शन पीरियड upon उन्होंने बोला है। data turnover ratio. हाँ, डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है ना उन्होंने। सो हाँ. डेटर कलेक्शन पीरियड 12 upon data turnover ratio. is equals to 12 upon Data turnover ratio. 12 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। सो डीटीआर लिख रहा हूँ डेटर टर्नओवर रेशियो को। और कलेक्शन पीरियड कितना है अपने को? आंसर में कितना दिया? 1.5 is 1.5। 1.5 is nothing but 1.5, तो 1.5 is equals to 12 upon डेटर टर्नओवर रेशियो। सो डेटर टर्नओवर रेशियो उधर लेफ्ट में ऊपर जाएगा, 1.5 नीचे आएगा। 12 सो बताओ upon हाउ मच इज डेटर 1.5. टर्नओवर रेशियो? डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा? 8 times. 8 टाइम्स। चलो अपने को टाइम्स चाहिए रहता है, मंथ्स में अपन सॉल्व नहीं कर पाते, अपने को टाइम्स में कन्वर्ट करना होता है, ये हमने पहले भी देखा है। सो व्हेनेवर डेटर कलेक्शन पीरियड इज गिवन टू अस इन मंथ्स, वी विल बी फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू टाइम्स, डेटर टर्नओवर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व दैट। चलो अभी सॉल्व कर सकते हैं। बताओ डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या है? Sales upon debtors. तो सेल्स अपॉन डेटर्स है डेटर टर्नओवर रेशियो। सो सेल्स Yes. अपॉन डेटर्स इज इक्वल टू, आंसर ऑलरेडी अपने को पता है इसका। 8. कितना टाइम्स है बताओ? 8 टाइम्स। 8 times. यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसलिए देयरफॉर लिख रहा हूँ। कभी भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे तो देयरफॉर लिख के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये दोनों में से पता क्या है बोलो अपने को? Sales. सेल्स 28 lakhs है। सो सेल्स 28 lakhs अपॉन डेटर्स,
इज इक्वल टू 8। चलो बोलो डेटर्स ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो बोलो आंसर बोलो, डिवाइड करके आंसर आएगा 3,50,000. सो डिवाइड करने का फाइनल आंसर कितना आ रहा है? डेटर्स आर इक्वल टू 50,000. 3,50,000। डेटर्स मिला 3,50,000। ठीक है, चलो जैसे डेटर्स मिला, बैलेंस शीट वाला और एक आइटम मिल गया। आई एम गोइंग टू राइट इट इन द बैलेंस शीट। डेटर्स डेटर्स लिखूंगा करंट लाइव एसेट्स में, और करंट एसेट्स में मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं। एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू राइट डेटर्स इन द सेकंड कॉलम। कितना मिला डेटर्स मुझे? 3,50,000 मिला है ना डेटर्स। हाँ 3,50,000. सो डेटर्स 3,50,000 सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं। इज दैट क्लियर? सो आई हैव द वैल्यू ऑफ डेटर एज वेल। चलो डेटर मिल गया, डेट कलेक्शन पीरियड भी सॉल्व हो गया मेरा। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो बोलो कौन सा है? मटेरियल कंज्यूम टू सेल. मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स है, बराबर है, और वो परसेंटेज में दिया है, डू रिमेंबर। चलो परसेंटेज में दिया है, फिर भी हमको याद रखना है इंटू 100 लिखना नहीं है, क्योंकि ऑल आंसर में परसेंटेज होता है, इसलिए हम इंटू 100 नहीं लिखते। मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स, बोलो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स 30% बोला है, बोलो फॉर्मूला बोलो मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स। मटेरियल कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम टू सेल्स इज इक्वल टू, परसेंटेज में दिया है ना आंसर, कितना परसेंट बोला है? 30%। चलो फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? मटेरियल कंज्यूम अपॉन सेल्स इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था। इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 30%। यहां पे भी हमें सेल्स पता है, सो दिस इज गोइंग टू बी मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन सेल्स। कितना है? 28 lakhs is equals to 30%. So therefore material consumed will be equals to 30% into 28 lakhs. इंटू होगा ऊपर जाके वो 30% इंटू 28 lakhs। बोलो 28 lakhs का 30% करोगे तो मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 4 लाख 8,40,000. सॉरी 8,40,000 मटेरियल कंज्यूम। हाँ अभी बताओ मटेरियल कंज्यूम बैलेंस शीट का फिगर है क्या? या मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या? स्टॉक नहीं डियर स्टूडेंट, दैट विल बी द रॉन्ग थिंग। मटेरियल कंज्यूम मतलब स्टॉक नहीं होता है, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं बोला है, मटेरियल कंज्यूम बोला है, बराबर है। सो दिस इज नॉट स्टॉक, दिस इज ओनली मटेरियल कंज्यूम। यानी याद रखना, अपने को कंज्यूम मिला लेकिन अपने को अभी तक स्टॉक नहीं मिला। स्टॉक के लिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, देखो स्टॉक ढूंढने के लिए। क्लियर विद दिस? So material consumed is not stock, dear students. Stock separately बोला है, stock of raw material in terms of number of months consumption. ए months consumption मतलब ये consume के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना stock of raw material रखना है, बराबर है। So 3 months का consumption, what does this means? उसका मतलब होता है 3 months का material consumption should be kept in stock, ऐसा उसका मतलब है। So in terms of number of months consumption, so material consume जितना भी आएगा उसका 3 months का consumption stock में रखना है। So how to solve this? This is something new, क्योंकि पहली बार raw material stock आ रहा है, बराबर है। So how to calculate raw material stock? तो याद रखना raw material का stock जब भी आएगा तभी अपने को किसका जरूरत पड़ेगा बोलो? मटेरियल कंज्यूम का जरूरत पड़ेगा। आज तक कभी भी मटेरियल कंज्यूम नहीं आया था, क्योंकि हमको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको खाली स्टॉक का कॉन्सेप्ट था। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ऐसा कोई स्प्लिट अप नहीं था। बट व्हेनेवर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलेंगे डियर मटेरियल कंज्यूम के हेल्प से हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट, तो उन्होंने मंथ्स में कुछ तो बोला है, तो हाउ टू सॉल्व दिस मंथ? तो देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्विंग होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, या रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम का कितना मंथ्स बोला है बताओ?
3 months ऑफ, ऐसा बोला उन्होंने 3 months ऑफ कंजम्पशन, यानी 3 months ऑफ मटेरियल कंज्यूम. That is what it means. बराबर. Now how to solve this? ये मैथमेटिकल सेंटेंस उन्होंने दिया है. ये मैथमेटिकल सेंटेंस को सॉल्व कैसे करता है? तो मटेरियल कंज्यूम हमको कितना मिला है? 8,40,000 मिला है मटेरियल कंज्यूम. अब 3 मंथ्स बोला है, तो इनटू कभी भी 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो क्या करोगे? 3 बाय क्या करोगे बताओ? 12 करोगे, क्योंकि ये मंथ्स में, ये परसेंटेज में होता था 3% होता तो 3 बाय 100 करता था, लेकिन 3 मंथ्स में रहेगा तो मैं क्या करूंगा? 3 बाय क्या करूंगा? 12 करूंगा. मंथ्स में रहेगा तो अपॉन 12. तो चलो 8,40,000 का 3 मंथ्स कंजम्पशन बोला है. सो 8,40,000 मटेरियल कंज्यूम, उसका 3 मंथ्स का कितना रिक्वायरमेंट आ रहा है? तो 3 बाय 12. बताओ कितना आया 3 बाय 12 उसका? 2,10,000. into 3 divided by 12. So this is 2,10,000. 10,000. ये आया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,10,000. अंडरस्टूड. अब स्टॉक मिला, मटेरियल कंज्यूम जो मिला था वो स्टॉक नहीं था. नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक मिला अपने को. मैं इनर कॉलम में जाके लिख रहा हूँ, जो स्पेशल कॉलम मैंने एडिशनली बनाया था उसमें जाके लिख रहा हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,10,000. ए क्लियर? और जैसे मुझे स्टॉक मिला, एक काम करूं, ये दोनों का टोटल करके आउटर में लेके जाऊं. चलो बताओ, तो दोनों का स्टॉक मिलके स्टॉक कितना हुआ बोलो? 5,60,000. 5,60,000. 5,60,000. 5,60,000. ये आया मेरा स्टॉक का टोटल 5,60,000. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. और रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अलग से मिल गया. देन कम्स विच रेशियो? करंट रेशियो. करंट रेशियो 2.5. DSO करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्या करंट एसेट्स है आपके पास टोटल? नहीं है. नहीं है. और करंट लायबिलिटीज भी नहीं है. बराबर है. और उसके बाद क्विक रेशियो दिया है. रेशियो, तो ये दो रेशियोज को यूज करूं. अभी अपने को आता ना ये दो रेशियो का कॉम्बिनेशन. हाँ. यस. और मैंने क्या बोला था, ये दो रेशियो का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए स्टॉक चाहिए रहता है अपने को. यस. देखो स्टॉक है ना अपने पास अभी. Yes. हाँ. तो रेशियो वी कैन सॉल्व दिस कॉम्बिनेशन. ओके. करंट रेशियो और क्विक रेशियो का कॉम्बिनेशन लेते हैं. चलो वो वाला रेशियोज अटके है. सो लेट अस यूज दैट कॉम्बिनेशन. सो पहला आएगा करंट रेशियो. करंट रेशियो कितना बोला है? करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.4:1 या 2.4. So current ratio is nothing but current assets upon current liabilities is equal to 2.4. अभी बहुत बार ये सॉल्व किया है तो आ जाना चाहिए ये. बोलो करंट लायबिलिटीज कितना लू? लेट करंट लायबिलिटीज बी x. So therefore current ratio, current assets upon x will be equal to 2.4. बोलो करंट एसेट्स कितना मिलेगा? करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू 2.4x. करंट एसेट्स मिला 2.4x. अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रेशियो लूं? ये दो रेशियो साथ में यूज करो. एक करंट रेशियो और दूसरा कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो. क्विक रेशियो. चलो क्विक रेशियो ले रहा हूं. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का आंसर कितना दिया? क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दिया? 1 दिया है. 1 क्विक रेशियो 1 दिया है ना. क्विक रेशियो का आंसर क्या? क्विक एसेट्स अपॉन फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1. बराबर. इसके बाद का स्टेप क्या है बताओ जरा मुझे. क्विक एसेट माइनस नॉन क्विक एसेट्स. क्विक एसेट्स नहीं, करंट एसेट्स. या करंट एसेट्स. करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक एसेट्स क्विक एसेट्स अपॉन current liabilities minus non-quick liabilities. current liabilities minus non-quick liabilities is equals to 1. बराबर है. सो क्वेश्चन में देख के बताओ बैलेंस शीट में नॉन क्विक एसेट्स में कौन सा वाला आइटम आ रहा है?
तो दिस इज करंट एसेट माइनस स्टॉक, इसीलिए स्टॉक चाहिए रहता है सॉल्व करने के लिए। सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक में कौन सा वाला आइटम होता है बताओ? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया। लेकिन है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। एग्जैक्टली आई एम नॉट राइटिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटी माइनस नॉन क्विक लायबिलिटी में, नॉन क्विक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट इन द फाइनल दिस थिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। करंट एसेट्स कितना मिला अपने को? 2.4x। 2.4x ये करंट एसेट्स मिला है अपने को, माइनस स्टॉक। अपन ने स्टॉक ऑलरेडी ढूंढ लिया, लेकिन स्टॉक क्या था पता है? ये सब में मैंने इनर कॉलम इसीलिए बनाया क्योंकि स्टॉक है ना, दो स्टॉक था अपने पास, एक रॉ मटेरियल था और एक फिनिश गुड्स था। लेकिन अपने को जब रेशियो में चाहिए तो दोनों का टोटल चाहिए। सो हाउ मच इज द टोटल ऑफ बोथ स्टॉक इंक्लूसिव? बताओ कितना आ रहा है? 5,60,000। इसीलिए हमने इनर कॉलम में उनको लिखा, टोटल करके आउटर में लेके गए, 5,60,000 का स्टॉक लिखा है। सो स्टॉक इज 5,60,000। सो व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग स्टॉक में लिखेंगे 5,60,000। बराबर है। अपॉन करंट लायबिलिटीज हमने कितना एज्यूम किया था बोलो? x इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। ये 1 ये x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो नेक्स्ट विल बी 2.4x माइनस 5,60,000 इज इक्वल्स टू, ये x उधर जाके क्या आएगा? 1x हो जाएगा। ये 1x इधर आके माइनस होने वाला है और ये माइनस 5,60 उधर जाने वाला है, पोजीशन चेंज होगा। सो 2.4x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 5,60,000। बराबर है। चलो बोलो 2.4x माइनस 1x करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1.4x x इज इक्वल टू 5,60,000। चलो डायरेक्टली आंसर सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है? 4 lakhs। तो x डायरेक्टली आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 lakhs। x मतलब क्या बोलो? Current liabilities। करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मिल गया, करंट लायबिलिटी 4 lakhs और करंट लायबिलिटी 4 lakhs है तो करंट एसेट भी मिल जाएगा। करंट एसेट कितना बोला है? 2 पॉइंट कितना 4x ना? 9,60,000। So that is equals to 2.4 into 4 lakhs. Yes। तो 9,60,000 आपने जैसे कैलकुलेट करके बोला मुझे 9,60,000 ना? चलो तो करंट रेशियो भी सॉल्व हो गया। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मिल गया। 9,60,000 करंट एसेट्स, 4 लाख करंट लायबिलिटी। चलो लेट मी राइट इट इन द बैलेंस शीट। 9,60,000 करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है आउटर कॉलम में जाके लिख रहा हूं। करंट एसेट्स ना आउटर कॉलम में लिखूंगा 9,60,000। Cash is 50,000. चलो रिवर्स में कैश मिलेगा, बोलो कैश कितना मिल रहा है रिवर्स में? 50,000। 50,000 कैश मिल रहा है। चलो कैश भी लिख ले रहा 50,000। तो कैश 50,000 ये हो गया। और करंट लायबिलिटी भी पता चल गया। हाउ मच इज करंट लायबिलिटीज? 4 lakhs। 4 lakhs। आई होप दिस इज क्लियर। समझा सबको? ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स कौन सा रेशियो अटका है लास्ट में? रिजर्व्स टू कैपिटल रेशियो। अब रिजर्व्स टू कैपिटल रेशियो लास्ट में है तो उसको तो यूज करना ही पड़ेगा। अब रिजर्व्स टू कैपिटल रेशियो के लिए ना रिजर्व्स है ना कैपिटल है और ना दोनों का टोटल है। लेकिन क्या दोनों का टोटल हम ढूंढ सकते हैं क्या? Yes, fixed asset और current assets का total. क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड का कंप्लीट टोटल है। सो लेट अस टोटल द एसेट साइड। चलो एसेट साइड लिखते हैं। हाउ मच इज द टोटल ऑफ एसेट साइड जरा मुझे बताओ? 10,000. 20 लाख 10,000. 10,000
10,000. That is your asset का total 20 lakh 10,000. बराबर है. And same I am going to write it in the on the liability side. 20 lakh 10,000. लायबिलिटी में भी यही सेम लिखूंगा. तो एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों का भी टोटल 20 लाख 10,000. 10,000. Yeah. अब उसमें से ये और माइनस करूंगा 8 लाख. 12 lakh Yes. 10,000. कितना आ रहा है? 12 लाख 10,000. 10,000. That is going to be your 12 lakh 10,000 is going to be your own funds. ठीक है. तो ओन फंड्स का टोटल मिल गया. विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हमने बैलेंसिंग करके निकाल दिया ओन फंड का टोटल. अब ओन फंड का टोटल मिलने के बाद ये दोनों का स्प्लिटअप चाहिए. Yes. और ये दोनों का स्प्लिटअप के लिए डीएसओ अपने को लास्ट रेशियो दिया है रिजर्व टू कैपिटल 0.21 बोला है. चलो तो वही लास्ट रेशियो का यूज करते हैं ताकि दोनों का स्प्लिटअप मिल जाएगा. रिजर्व टू कैपिटल में इधर ही बाजू में लिख रहा हूं रिजर्व टू कैपिटल. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना दिया है 0.21. 0.21 फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ. रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन कैपिटल या कैपिटल या शेयर कैपिटल एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू 0.21. बोलो दोनों भी मिसिंग है क्योंकि दोनों भी आइटम मिसिंग है. खाली टोटल पता है लेकिन दोनों भी मिसिंग है. बोलो किसको एक्स लू. Own fund. Capital. लेट कैपिटल बी एक्स. हाँ. सो कैपिटल को एक्स ले रहा हूं. सो कैपिटल बी एक्स और कैपिटल को अगर एक्स एज्यूम कर रहा हो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो कितना आएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी 0.21. X. reserves and surplus upon x is equals to 0.21. So reserves and surplus will be equals to 0.21x. Yes. और इनको सॉल्व करने के लिए अपने को इनका टोटल भी पता है. Yeah. इसलिए हमने टोटल ढूंढा था ताकि हम सॉल्व कर पाए. तो चलो अपना इक्वेशन क्या बनता है. इक्वेशन बनता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ओन फंड्स इज इक्वल्स टू ओन फंड्स. ये अपना इक्वेशन बनता है इसको सॉल्व करने के लिए. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने को अपन ने शेयर कैपिटल कितना एज्यूम किया था x. रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आया था 0.21x. Yes. इज इक्वल्स टू टोटल इज आई थिंक कितना टोटल दिया है 12 लाख 10,000. Yes. ठीक है. सो ये x मतलब 1x तो 1x प्लस 0.21x आएगा 1.21x. Yes. is equals to 12 lakh 10,000. So x will be equals to 10 lakh. 10 lakhs आएगा और डिवाइड करने के बाद Yes. और 10 lakhs मतलब x मतलब शेयर कैपिटल. Yeah. शेयर कैपिटल 10 lakhs और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मिल जाएगा. या तो इधर ढूंढो या तो उधर डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस 0.21 था x. Yes. which is equals to 0.21 into 10 lakhs. Yeah. 2 lakh 10,000. So that will be 2 lakh 10,000 reserves and surplus. ठीक है. चलो so दोनों भी मिल गया. Let me write down the value of share capital. Share capital मिला 10 lakhs. And reserves and surplus मिला 2 lakh. 2,10,000. Hey, done all of you? Yes. Yes. Understood with this sum? Yes. Yes. ठीक है. ये सब थोड़ा लेंथियर था. बहुत सारा चीजें था. नए एक्सपेक्ट्स थे. बहुत सारे नए एक्सपेक्ट्स में एक तो परसेंटेज रेशियो कैसे का सॉल्व करने का वो था. याद रखना जब भी परसेंटेज रहेगा आपको आंसर में into 100 लिखने की जरूरत नहीं है.
दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. 2-3 चीज यहाँ पे याद रखना है. इंटू 100 नहीं लेना है. जब भी परसेंटेज सॉल्व करोगे इंटू 100 नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर में परसेंटेज है. ये पहला चीज, क्योंकि इंटू 100 अगर आपने ले लिया तो पूरा सम रॉन्ग जाएगा. ये याद रखना. ठीक है. दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस सम. एक तो कन्वर्शन वापस एक बार देखा अपन ने. कन्वर्शन याद रखने का. सेल्स टू कॉस्ट का कन्वर्शन कैसे किया वो याद रखने. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वो एक देखा. एंड देन फिक्स्ड एसेट चार्जेस एक नया चीज था. बराबर है. फिक्स्ड एसेट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहली बार हमने सॉल्व किया. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिया. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन डिबेंचर इंटरेस्ट. ये वाला फॉर्मूला एक नया था जिससे डिबेंचर इंटरेस्ट मिला, और डिबेंचर इंटरेस्ट के हेल्प से हमने डिबेंचर ढूंढ लिया. अंडरस्टूड. दिस वर द क्रिटिकल पॉइंट्स एज फार एज दिस सम इज कंसर्न. क्लियर विद दिस? Yes, sir. चलो, I hope this is clear. Thank you all of you. Thank Let you, us sir. day after tomorrow, that is on Tuesday. Okay. Stay home, be safe. Thank you all of you. Okay. Thank you.